Students, welcome again in digital classes. Dear student, I am here for class 9th and in previous video, we have discussed about the algebraic identities. Four type of algebraic identity we have discussed and we have studied. I taught you and I hope you all got all the points. But today I am here for next algebraic identities, how to expand the trinomial, cube of square of trinomial, because in previous identities we have expanded form, we have find the expanded form, we have opened the identities which is binomial, square of binomial. Today we will discuss here again square of trinomial, means if three terms are come, then how can we open? So note down the next algebraic identity, that is 5 number algebraic identity, square of trinomial. Square of trinomial means three terms are there, x plus y plus z and then whole square. So how can we expand it? How can we open? Right? Dear student, note down this identity, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. In this way you can easily open the identity x plus y plus z. How many types of questions are there? And there are only two types. First, if question come in this form, so means what is asking in this question? Only expanded form, right? And if question come in this form, so what is asking? Factorization only. So there are two types of question, how to expand the form and how to factorize. Two types of question related to this identity. But dear student, one major point is here, all the questions come in the different form, means here positive sign is given, sometimes here negative and all the terms may be negative. Right, one or two terms negative, one may be positive, means पॉजिटिव भी टर्म आ सकती है और नेगेटिव टर्म आ सकती है. तो उस वे में आपको क्या करना है? फर्स्ट आई एम टेलिंग द एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटी, नॉट यूजिंग दिस साइन. राइट, मीन्स ऑल आई एम नॉट टेकिंग हियर ऑल द टर्म पॉजिटिव, one or two term I have taking the negative term, and after that we have solved. Right, so be ready. First example related to this, and related examples is how to open the square of trinomial, means three terms को हम कैसे open करते हैं. Question is there, 2p minus 3q plus r and square. Open it, the square of 2p minus 3q plus r. So dear student, by the comparison of identity number 5, we can easily identify here. Yes, start now comparison. Check, value of x is here, x is value is 2p, y value is you can say minus 3q, and z value is here r. So we have substituted these values in this. So we can easily explain this form. इतना ही वर्क करना है. बाय द कंपैरिजन आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइंस को साथ में लेना है, पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी. नाउ वी हैव ओपन हियर, सो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5 यू कैन राइट हियर, यूजिंग आइडेंटिटी 5 वी हैव सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन आइडेंटिटी नंबर 5. व्हाट वी गेट हियर, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, देन स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, देन स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म. आफ्टर दैट 2 into product of first and second term. So first term is here 2p and second term is here minus 3q. Then sign positive. After that second term and third term. So second term is here minus 3q and third term is here r. After that 2 into third term and first term. Third term is here r and first term is here 2p. I hope you are getting my points, right? In this way you can expand it. Now solve it
Yes, tell me the square of 2. Square of 2 is 4. Square of p square. Next, sign positive. Open the bracket. Bracket means solve this term. Square of minus 3. So what is the square of minus 3? Minus 3 into minus 3 equal to plus 9. Right? So we can write here 9q square. R square is square of r square. After that, check here. How to find the product? First, multiply the constant term. After that, multiply the variable. आपको क्या करना है? कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन आपको मल्टीप्लाई किसको करना है? वेरिएबल को. कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है? 2, 2 और -3. साइन भी साथ में मल्टीप्लाई करते रहें. प्लस प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस. ओके. 2 2 या 4, 4 3 या 12. पी क्यू. पी और क्यू को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? पी क्यू. ओके. नेक्स्ट में चेक करें आप. कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 -3 और 1. राइट. ओनली सिंगल क्या है आपके पास? वेरिएबल है, तो श्योर कांस्टेंट क्या रहेगा? वहाँ पे 1 रहेगा. मल्टीप्लाई करें 3 2 या 6. साइन क्या आएगा? -6 क्यू आर. लास्ट में फाइनल चेक द साइन. पॉजिटिव 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 मीन्स क्या आएगा? पॉजिटिव. 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4. 4 क्या आ जाएगा? पी आर. कंप्लीटेड. In this way, you can easily expand the form of square of trinomial. Okay, student. Next and final example related to this. Now I am taking the other example. A minus B minus C. Okay. Otherwise, rational form I am taking here. Okay. So easily आपको understand हो जाएगा. ये लो एग्जाम्पल नंबर 2. काफ़ी होंगे. ए माइनस हाफ बी माइनस हाफ सी होल स्क्वायर. कैसे ओपन करेंगे? नोट करते चलें. बाय द कंपेरिजन व्हाट यू गेट? एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू माइनस हाफ बी एंड जेड इक्वल टू -3/2 सी. राइट. एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू माइनस हाफ b, z equal to -3/c. So note down these things in your identity. Substitute it. So what you get? First, square of first term, then square of second term, then square of third term. Okay. Next, second 2 into first term and second term. Plus 2 second term and third term. 2 third term and first term. ये लो. अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई. क्या आ जाएगा? स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर, देन माइनस हाफ स्क्वायर. माइनस हाफ स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे बताता हूँ. माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 कितना आ जाएगा? 1/4 बी स्क्वायर. यहाँ पे लोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. स्क्वायर लेते 3 का स्क्वायर 9 और 2 का कितना हो गया? 4 सी स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट ये देखो कैसे करते हैं सॉल्व. यहाँ बता देता हूँ एक एक टर्म को. कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है. 2 × 1 × -2. 2 × 1 × -1/2. सॉरी, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. रिमेनिंग क्या वैल्यू रह गई? -1. तो नोट करें -AB. नेक्स्ट टर्म, इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे आप? 2 × ठीक है 2 × -1/2 × -3/2. साइन देखें. पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. ओके. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. कितना रिमेनिंग रह गया? 3/2. नोट करें यहाँ पे 3/2 BC. एंड लास्ट में फाइनल. इसको आप सॉल्व करेंगे. कैसे करते हैं? नोट करें इसको भी. 2 × -3/2 × 1. ये है ना, तो एक के साथ में क्या है? 1 है. सॉल्व करें. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. साइन देखें. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव रिमेनिंग कितना रह गया? 3
ए सी लिख दें या सी ए लिख दें, आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट। सो इन दिस वे यू कैन इजीली एक्सपेंडेड द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ओके, नोट डाउन दिस एंड लर्न इट फर्स्ट। आपको लर्न नहीं होगी तब तक आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम टेलिंग द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस algebraic identity. यस, नोट करते चलें एग्जाम्पल। अब इस बार जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल आएगा, वो इस वे में आएगा और उसको कन्वर्ट किस में करना है, इसमें, और उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइज। फॉर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम एन आ गया बेटा। अब इसका क्या लेते हैं, और पी ले लेते क्या, चलो, माइनस 4 पी स्क्वायर, फिर साथ में क्या आएगा, 4 आ गया क्या, 2 ज़्यादा आ गया मेरे को लग रहा है। ओके, बुक से कर लेते हैं नोट। फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, 4xy नोट कर लेते हैं, 4xy, देन माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस 4zx, बहुत है, ठीक है। ये लो, क्वेश्चन इस वे में आपके पास आ गया, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz एंड प्लस 4zx। सो हाउ टू सिंप्लीफाई इट। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नोट डाउन हियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है इसमें, वो क्या है कि इस फॉर्म में यदि आपको आता है तो इस फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। फर्स्ट चेक, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड, 3 टर्म्स आपको दे रखी है, उनके परफेक्ट स्क्वायर आप नोट करते चलें। कैसे स्क्वायर, इसको किससे कन्वर्ट करेंगे, 2x एंड देन होल स्क्वायर प्लस y एंड स्क्वायर देन z स्क्वायर। अब एक साथ में और करते हैं सिंपल वे में। एक बार साइन को आप भूल जाएं, जस्ट राइट इन दिस वे, प्लस 2xy प्लस 2x, x की जगह क्या आ रहा है 2x एंड y की जगह क्या आ रहा है y। एक बार सिंबल भूल जाएं, उसके बाद में हम सिंबल को नोट करेंगे, देन 2y एंड z, राइट, एंड लास्ट 2z एंड फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, बट दिस टर्म इज नेगेटिव। अब आप बताओ इसमें नेगेटिव कैसे आ सकता है। 2 तो देखो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। सो मे बी फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव, अदरवाइज सेकंड टर्म इज नेगेटिव। कंडीशन अप्लाई आप नोट करें, या तो कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, या फिर क्या होगी, सेकंड टर्म नेगेटिव होगी। वाई, बिकॉज यदि दोनों नेगेटिव होती तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। ओके, मीन्स आपने यहाँ पे एक तो ये कर लिया नोट कि इनमें से दोनों में से एक टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। अब पता नहीं चल रहा ना कौन सी होगी। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म में आओ, नेक्स्ट टर्म में भी नेगेटिव है, तो ये कह रहा है कि इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, तो या तो होगा ये नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव, दोनों हो नहीं सकती। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, सिंपल सा है, कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन आपको लग रहा है वाई आ रहा है, तो एक यहाँ पे लगा दो नेगेटिव और एक यहाँ पे लगा दो, खत्म कहानी। ये लो, सिंपल वे, इतना ही करना है। सेकंड टर्म को आपने नेगेटिव किया है, तो जहाँ जहाँ सेकंड टर्म आ रही है वहाँ क्या लगा दो, नेगेटिव लगा दो। ये नेगेटिव इसमें लगाया, इसमें भी लगा दिया, तो इसमें तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर हो रहा है, नॉट नीड। यहाँ पे देखो आप, अब आप कह सकते हैं इतना सा, क्या, यूजिंग
आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 5 क्या कह सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। मीन्स इस वे में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, और इस वे में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम किस में राइट कर सकते हैं, इस वे में राइट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म 2x है, सेकंड टर्म माइनस वाई है, थर्ड टर्म क्या है जेड, उसका क्या ले लिया स्क्वायर। फैक्टराइजेशन क्या हो गया, दो बार लिख दो इसको, 2x माइनस वाई प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड। योर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, योर सॉल्यूशन इज completed. So using this way you can easily identify or you can easily factorize the terms. Next, second type of example. Second type of example I am telling you related to this property, right? Note down. Yes. टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स वाई, 2√2 माइनस 2√2 एक्स वाई प्लस 4√2 वाई जेड माइनस 8z आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से चेक कर लें, 4√2 वाई जेड एंड माइनस 8z। ये लो, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल, हाउ टू फैक्टराइज, राइट। फर्स्ट क्या क्या मेथड बताया मैंने आपको, नोट करते चले। यहाँ पे आपके आ रहा है 2√2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर, ये आ रहा है। डियर स्टूडेंट, व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट कन्वर्ट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप कहोगे सर 2 का तो होता ही नहीं, होता है, कौन सा, ये नंबर √2, बट इसको परफेक्ट नंबर नहीं बोल सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, तो आप इसको क्या राइट करेंगे, √2x होल स्क्वायर, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट, y को आप इजीली राइट कर सकते हैं वाई स्क्वायर, और 8 को क्या राइट करेंगे, देखो फैक्टराइज किया आपने तो 8 का कर लिया आपने 2 × 2 × 2, अंडर रूट लिया तो कितना आ गया, 2 पेड़ निकल गए, 2√2 आ गया, तो उसको आप लिखेंगे 2√2z होल स्क्वायर। ये लो, इतना वर्क आपको पहले करना होगा, ये वर्क आपको करना ही पड़ेगा। थिंक इट, सोचना पड़ेगा कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, या तो आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज फाइंड आउट करना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, याद रखना। अब आगे वाली टर्म को देखना नहीं है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वो अपने आप आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको किसके अकॉर्डिंग रन होना है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। कैसे, 3 टर्म्स आ गई, अब नोट करें, +2 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, √2x, वो नोट करें। सेकंड टर्म क्या है, y, नेक्स्ट 2 फिर y की जेड की वैल्यू क्या है, y और 2√2z एंड नेक्स्ट 2zx में क्या आ जाएगा, 2 √2√2z एंड x की जगह क्या आएगा, √2x। सिंप्लीफाई हो गया। नाउ अब अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है, साइन, ये नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। चलो बात करते हैं उसी वे में। नेगेटिव आ रहा है इस टर्म की, इस टर्म मीन्स एक्स और वाई में से एक नेगेटिव होगी, या तो होगी एक्स टर्म नेगेटिव या क्या होगी, वाई नेगेटिव होगी। डन। चलो एक तो टर्म ले ली एक्स और एक क्या ले ली वाई, इनमें से दोनों में से एक नेगेटिव होगी, दोनों तो नेगेटिव हो नहीं सकती, दोनों होते क्या हो जाती है, वापस पॉजिटिव हो सकती है, तो एक को नेगेटिव कर लेते हैं, बाद में करेंगे, पहले फिर देखेंगे। वाई जेड यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो वाई तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यदि ये नेगेटिव होता तो ये भी टर्म क्या होती है, नेगेटिव, तो वाई तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो नहीं सकता।
हो सकता है, तो फिर कंडीशन अप्लाई है। सिंपल वे बता रहा हूँ। और फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव, तो जेड और एक्स, जेड में होता तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाता। सिंपल है, किसके पास है नेगेटिव? एक्स के पास। एक्स मीन्स फर्स्ट टर्म के पास नेगेटिव, उसको आप नोट कर दें। फर्स्ट टर्म जहाँ जहाँ दिख रही है वहाँ पे नेगेटिव लगाते चले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। आप चेक कर सकते हैं कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, इसका करेंगे ये, इसका करेंगे ये। अब नोट करें, नेगेटिव साइन आ गया, 2 इंटू रूट टू, 2 रूट टू एक्स वाई, डन। 2 इंटू 2 4 रूट टू वाई जेड। नेक्स्ट 2 इंटू 2 रूट टू एंड रूट टू, सो रूट टू इंटू रूट टू 2 2 या 4 4 2 या 8 जेड एक्स, डन। नोट डाउन, क्या राइट करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी, using identity 5 we can say root 2x negative plus y plus 2 root 2 z whole square। अब आप कहोगे सर हमारे सॉल्यूशन ये मैच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो ये वे हो जाएगा, और इफ़ यू डिवाइड बाई नेगेटिव साइन, आपने देखो फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है, आप इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं तो पूरी टर्म को क्या करेंगे? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन आपके इस वे में आएगा रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर। दोनों ही सॉल्यूशन राइट है आपके, ये भी राइट है और ये भी राइट है, कोई नहीं कहेगा। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे you can easily learn the identity number 5, and in next video we will discuss the next type of identity related to the cubic of binomial, cube of binomial, exponent form and questions, and I hope you are getting all the points. Thank you for watching.